السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز عشق بائی نور آصف کی ادر ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو گئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اور اس پر رسپانس بہت اب ٹھنڈا آ رہا ہے تو پلیز جلدی جلدی سے اس پہ اچھا سا رسپانس دیں، لائک اینڈ کامنٹ کیا کریں. سبوہا کا اور اس کے علاوہ سعد بن نعیم اور ایک ڈال ہے جو رمز عشق کی اب ہر ایپیسوڈس کے نیچے ان کے کامنٹس ہوتے ہیں. تو پلیز آپ لوگوں کا بہت سارا شکریہ. لیکن باقیوں سے بھی گزارش ہے کہ ریڈ کر کے دیکھ کے نکل نہ جایا کریں، لائک اینڈ کامنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ کون کون ریڈ کر رہا ہے. چلیں جی، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں، چلتے ہیں ناول کی طرف. چلے مان لیتے ہیں مجھے جینس اور شرٹ میں کوئی مرد دیکھ لیتا ہے تو آپ کی نام نہاد غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ غیرت کو رات کو میرے قریب آتے کہاں چلی گئی تھی؟ ابرش نے سسکتے ہوئے کہا، میں رات جنگل میں سوچا تھا آپ پر اعتبار کر کے اپنے رشتے کو آگے بڑھاؤں گی، مگر آپ کے دھوکے نے پھر سے میرے اندر آپ کا اعتبار ختم کر دیا. مجھ پر اعتبار تو کرتے، میں آپ کو میں خود آپ کے پاس آتی، مجھے وہ حرام مشروب پلائے، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی. ابرش نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے روتے ہوئے خود کو اس کے حصار سے چھڑوایا. زران اس کی کلائی کو جکڑتے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے واش روم کی طرف بڑھا. زران کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے. ابرش چیخ رہی تھی. وہ اس کی کلائی مضبوطی سے تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھا. ابرش نے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر واش روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا. دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا، دھاڑ کی آواز سے ابرش لرزا اٹھی تھی. زران نے اسے پوری قوت سے دیوار کی طرف دھکا دیا تو بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی. زران. ابرش خود کو سنبھالتے گہرے سانس لیتی چیخی تھی. جواباً اس نے جن نظروں سے گھورا اس کا دل پہلو میں دھڑکتا ہوا ٹکڑا تھا. زران کے خوفناک نظروں سے گھبراتے ہوئے ابرش نے اپنے قدم واش روم سے باہر کی طرف بڑھائے. زران پھر سے اس کی کلائی جکڑے سے دیوار کے ساتھ پٹک چکا تھا. اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ شدت سے دیوار میں پٹکا تھا. درد کی شدید لہر اسے اپنی کمر میں سرایت کرتے محسوس ہوئی. ابرش نے نم نگاہوں سے ستمگر کو دیکھا جو اس کے گرد دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ پین کیے سے سخت نظروں سے گھور رہا تھا. ابرش نے سسکی لیتے اپنے کمر میں اٹھتا درد برداشت کیا. رات بھی وہ یقیناً اس کے نازک کمر پر کافی ظلم ڈھا چکا تھا. پہلے اسے شدید درد ہو رہا تھا، اب جس بری طرح پٹکا تھا وہ مرنے والی ہو گئی تھی. مجھے جانے دو زران. ابرش اس کے سر سرخ نظروں سے گھبراتے ہوئے بولی. وہ جن نظروں سے گھور رہا تھا ابرش کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی. وہ ہوٹل کے قریب کمرے میں اس کے ساتھ اکیلی تھی. یہ سوچ کر اب اس سے پسینے آنے شروع ہو چکے تھے. اس کا کل رات والا صفاق روپ یاد آیا جب اس نے بہرزاد کے آدمیوں کو بہت بے دردی سے قتل کیا، جس بری طرح اس نے گاڑی کے بونٹ پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے زخمی کیا تھا. وہ کل رات سے اسے کافی ڈر گئی تھی. دوسرا، اس کے دل میں کل رات کو زراں کو لے کر ایک تحفظ کا احساس ہوا تھا، اسی لیے آج اس کے منہ سے اس کے لیے آپ نکل رہا تھا، مگر وہ اسے حرام مشروب پلا کر اس کا فائدہ اٹھائے گا، یہ بات اسے تکلیف دے گئی تھی. اسے سامنے کھڑے ظالم بے رحم پر ویسے بھی بہت غصہ تھا جس نے کل رات بے ہوشی میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت بے رحمی دکھائی تھی. وہ نکاہت کے باعث اب کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی. اب وہ اسے واش روم کیوں لایا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کہیں وہ پھر سے اس کے ساتھ وہی سب کچھ تو دہرانا نہیں چاہتا. یہ سوچتے ہی ابرش نے زران کی سرخ نظروں سے کتراتے ہوئے اپنے گاؤں کی ڈوری کس کر باندھی. زران نے اس کی حرکت دیکھتے استدعائیہ نگاہ اس پر ڈالی. وہ اس کے قریب ہوا تھا. زران کی سانسیں اپنے چہرے پر بکھرتے محسوس کرتی. اس کے گال دہک کر انار ہو رہے تھے. زران کے ہونٹ اب اس کے ہونٹوں سے ٹچ ہو رہے تھے. اسے محسوس کرتے ابرش اپنی آنکھیں میچ گئی تھی. زران کی گہری گرم سانسیں اس کے گلاب سے ہونٹوں پر بکھر رہی تھی. ابرش اور بھی سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی. مزاحمت کرنے میں ہمت نہ تھی، اس کی شدتیں سہنے کی طاقت نہ تھی. وہ آنکھیں نیچے اس کی شدت اپنے لبوں پر سہنے کے لیے اب تیار تھی، مگر اس کا بدن بری طرح لرز رہا تھا. یکدم اسے اپنے اوپر پانی کی بوچھاڑ گرتی محسوس ہوئی. اسے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی. زران نے روف شاور آن کیا تھا.
गर्म पानी की बौछार गिरते हुए इससे और जरान को भिगो रही थी। जरान, ये क्या कर रहे हैं? पागल हो चुके हैं क्या? अब्रिश ने गहरे सांस लेते चीख कर कहते जरान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। जरान ने इसे दोनों बाजुओं से पकड़कर इसे दीवार के साथ लगाया। खड़ी रहो यहीं पर। तब तक तुम खड़ी रहोगी जब तक तुम्हारा नशा मुकम्मल तौर पर उतर न जाए, तुम्हें याद ना आ जाए रात को क्या हुआ था। जरान इसके दोनों इतराफ में हाथ जमाए हुए गुर्राया। क्या हुआ था रात को? जो हुआ है वो आप भी जानते हैं। जो क्या आपने किया? अमरीश बमुश्किल ही बोली थी। जरान इसे दीवार के साथ लगाए मुसलसल गिरते पानी ने इनकी सांसें तेज कर दी थी। अभी याद आ जाएगा किसने क्या किया क्या। जरान ने इसे सर्द नजरों से देखते लफ्ज चबाए थे। अमरीश अब गहरे सांस लेते इसे एकटक देखे जा रही थी। दोनों पर पानी गिरता इन्हें अच्छा खासा भिगो गया था। दोनों ही अब गहरी सांसें लेते एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। ज़रा प्लीज मुझे जाने दे, अविश ने गहरी होती सांसों से बमुश्किल बोलते इल्तिजाहिया लहजे में कहा। वो मजीद कुछ देर और खड़ी रहती, यकीनन जमीन बोस हो जाती। इसे गर्म पानी के नीचे अब सर्दी लगना शुरू हो चुकी थी। जरान, इसने इसके होठों पर उंगली जमाई। जब तक तुम्हें याद नहीं आएगा कल रात क्या हुआ, तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं। वो शॉवर की स्पीड और तेज करते बेरहमी से बोला। कल रात क्या हुआ था? आप ही बता दे क्या हुआ था। वो बेबसी से चीखी थी। और फिर जैसे तुम चाहो, मैं कुछ कहूंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे कहने पर यकीन नहीं करोगे। तुम्हारे नजदीक में बेतबार जो ठहरा, जो इतना कमजोर और गिरा हुआ है, अपनी बीवी को हराम मशरूफ इसलिए पिलाएगा क्योंकि इसने इसका मधोशी में फायदा उठाना था। जरान ने तंजिया कहते अपने बाथरूम गाउन सीने से रिमूव किया। अबिश ने फटी फटी आंखों से बेयकीनी से जरान का सीना देखा था। गर्दन से सीना सुर्ख धब्बों से भरा हुआ पड़ा था। गर्दन पर दांतों की गड़ी बनी हुई थी, जहां काफी निलाहट थी। ये किसने किया? अबिश की आवाज लड़खड़ाई थी। मैं खुद तो करने से रहा, तुम ही सोचो किसने किया है। जरान तंजिया मुस्कुराया था। अबिश सिर्फ चेहरे के साथ बेयकीन निगाहों से वो नशा देख रही थी। इतनी बेवकूफ हरगिज न थी, लव बाइट की पहचान न कर सके। ये निशान जरान की शिद्दतों के बाद इसके पूरे बदन का हिस्सा बने थे। एकदम रात का एक एक मंजर इसकी आंखों के आगे लहराया। उसका चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ा था। घनेरी पलकें आरस पर खुद ब खुद झुक गई थी। वो लब काटते नजरें झुकाए दीवार के साथ लगे गहरे सांस भरने लगी। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते वो समझ गया था, इसकी बेवकूफ जज्बात बीवी को सब कुछ याद आ गया है। क्या हुआ बीवी? आप नजरें क्यों झुक गई? सुर्ख गुलाब क्यों हो रही हो? शर्मा रही हो या अपनी हरकतें याद करके खुद शर्म महसूस कर रही हो? जरान इसके झुके सर्द अंदाज में गर्जा। मम्मा, मैं वो अब्रिश की जुबान लड़खड़ाई। तुम्हें कल रात वो हराम मशरूब सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए पिलाया था। ना मेरा कोई इरादा था, ना मैंने ऐसा कुछ सोचा था। मैं जरान खान ज्यादा हूँ, सेल्फ कंट्रोल इंसान हूँ। मुझे खुद पर बहुत कंट्रोल हासिल है। ये तुम्हें इन 3-4 माह में पता चल गया होगा, जिस पर तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे छोटे छोटे कपड़े कोई असर नहीं कर सके। वो कल रात तुम पर इतने गुस्से के बावजूद कैसे बहक सकता था? वो एकदम चीखा था। अबरीश इसके चीखने पर मुंह पर हाथ रख गई। अगर मुझे तुम्हारे करीब आना होता तो होश में तुम्हारे करीब आता। ये घटिया काम ना करता। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है? तुम्हारे तन मन का खुदा के बाद मैं मालिक हूँ। ये घटिया खेल खेलने की मुझे जरूरत नहीं। लेकिन अब अफसोस हो रहा है मैं कल रात तुम्हारे करीब क्यों आई। तुम मदहोश थी, मैं तो होश में था। तुम कभी मेरे जज्बात एहसासात नहीं समझ सकती। पहले मेरे जज्बात भड़काती हो फिर ऐसे रिएक्ट करती हो। अब समझ आया मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत क्यों है। तुम जैसी बीवी के होते हुए मर्द मजबूर होता है दूसरी शादी करने को। जरान के इस बात पर अबिश ने भीगी जख्मी निगाहों से इसे देखा। जरान की सारी बातों से ज्यादा इस बात ने गहरी चोट लगाई थी। वो बिलबिला कर रह गई। जरान इसकी भीगी जख्मी निगाहों को देखकर लब खींच गया था। जानता था इसकी सरकरी बीवी का प्यार ऐसा ही है। वो खुद जो मर्जी करे, मगर इसके लिए शिद्दत पसंद थी।
वो इसे ये कहना नहीं चाहता था, मगर इसके लफ्जों ने तकलीफ दी थी कि वो भी इसे तकलीफ देना चाहता है। हाँ, मगर इसकी आंखों में उतरती नमी ने इसे एहसास दिलाया, इसे ये नहीं कहना चाहिए था। जरान इस पर कहरबार निगाह डालते दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था। वो भागते हुए वो अपने दोनों हाथों से इसके सीने को जकड़ते इसकी पुश्त के साथ लिपट गई। इसके इस तरह लिपटते ने जरान खानजादा के कदम ठहरे थे। वो उसकी पुश्त के साथ लिपटते गहरी सांसें भर रही थी। मेरा मतलब नहीं था जरान, मुझे सिर्फ गुस्सा हराम मशरूब पीने का था। अब्रिश इसकी पुश्त के साथ लिपटते सिसकते हुए बोले, क्या मैं तुम्हें इतना घटिया लगता हूँ कि तुम्हें हराम मशरूब पिलाकर तुम्हारे करीब आऊंगा? वो रुख पलटते इसके बाल गुद्दे से जकड़ते इसका चेहरा रूबरू करते इस्तफामी अंदाज में बुलाया, नहीं जरान, मुझे इस बात पर गुस्सा था, मगर मेरे बदन में पेन था। आपकी बेरहमी पर मुझे गुस्सा आ गया। अब्रिश जरान के साथ आंखों में देखते हुए गड़बड़ाई थी। ओके ठीक है, फिर दूर रहो मुझसे। अगर दोबारा मेरे करीब आए तो उससे ज्यादा बेरहमी दिखाऊंगा। जरान ने ऐसा खुद से दूर धकेला। अब्रिश इसके और करीब होते इसका बाथरूम गाउन सीने से दोनों हाथों से जकड़े इसके लबों पर छुप गए। जरान का बलाई लब अपने होठ अपने लबों में लेते इसे शिद्दत से चूमने लगे। जरान इसके ऐठ पर स्टिल हुआ था। जरान कुछ पल ऐसे ही खड़ा रहा, लेकिन वो चाह कर भी इससे दूर नहीं हो सका था। इसकी कुर्बत इसकी कमजोरी थी। रात के बाद वो इसका पहले से ज्यादा असीर हुआ था। रात इसकी शिद्दतों में इसकी पागल बीवी की दीवानगी पे छलक रही थी। जरान ने इसके बालों से जकड़े खुद से दूर किया। अब्रिश ने लहू छलकाते चेहरे के साथ इसे देखा था। रात मदहोशी में इसके करीब गई थी। अब पूरे होशो हवास में इसके करीब गई थी। चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो चला था। इसने बेख्तियारी में नहीं किया, मगर फिर भी वो अब जरान की आंखों में नहीं देख सकती थी। रात की रात की भी अपनी हरकतें याद करके इसका बदन अब लरसना शुरू हो चुका था। जरान ने इसे यूं शर्मिंदा सुर्ख चेहरा के साथ नजरें झुकाए देखकर इसे बाजू से नरमी से जकड़े खुद के करीब किया। तुम्हारी हर अदा जान लेगा है बीवी, क्या शय हो तुम आखिर? मदहोशी में तुम होश उड़ाती हो, होश में भी मेरे होश उड़ाना तुम्हें खूब आता है। जरान ने मुस्कुराते हुए इसकी थोड़ी नरमी से ऊपर उठाते हुए शरारती लहजे में कहते, इसकी शर्मिंदगी जाहिल करनी चाहिए। जरान वो मैं अब्रिश सुर पोते चेहरा दोनों हाथों में छुपा गए। जरान ने नरमी से हाथ इसके चेहरे से हटाए थे। बीवी होश में मेरे करीब आई हो, अभी भी वक्त है, सोच लो। अभी कुछ हो जाएगा, तुम्हें दिन रात हर पल सिर्फ मेरे करीब रहना होगा। बहुत बेरहमी दिखाऊंगा। तुम्हारे शिकवे, तुम्हारी सिस्कियां तुम्हारे लबों में दम तोड़ जाएंगी। मैं हर वक्त तुम्हारे खूबसूरत नरमो नाजुक पंखड़ियों से लिपटा रहूंगा। अब रिहाई नहीं मिलेगी कभी। जरान ने इसकी कमर पर हिसार मजबूत करते गंभीर आवाज में कहा, सोच लिया मिस्टर खानजादा? अब्रिश झुकी नजरों से सुर्ख चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए बोले, ओ नो, ऐसे नहीं जाने मन। मिस्टर खानजादा, स्टाइल में कहो। जो रात को तुम्हारे अंदाज था, मुझे अब दिन रात तुम्हारा वही अंदाज चाहिए। जरान ने उसके लबों पर नरमी से उंगली रखी। जरान, आबिश ने जरा सी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा था, फिर मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका गई। जरान की गुलाबी मदहोश आंखों को देखते इसके लबों पर झुके, इन्हें अपनी सांसों में कैद कर दिया। कतरा कतरा इसकी सांसों को पीते मदहोश होता। वो हर हद से गुजर गया था। अब्रिश इसकी पनाहों में बेबस होती खुद को इसे मुकम्मल तौर पर सौंप गई थी। अब्रिश शावर लेने के बाद खुद पर टावल लपेटे आईने के सामने खड़ी थी। लहू पर शर्मीली मुस्कान थी, होंठ जरान की शिद्दत से लहू छलका रहे थे। बाथरूम गाउन गीला हो चुका था, इसके कपड़े कमरे में थे। अब कमरे में ऐसे जाते हुए शर्म आ रही थी। वह कब से वॉशरूम में खड़ी थी। जरान जो शावर लेने के बाद ट्राउजर में मलबूस कमरे में ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपने बाल टॉवल से रगड़ते ड्राई कर रहा था। जरान ने वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। जरान समझ चुका था वो बाहर क्यों नहीं आ रही। जरान मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलते वॉशरूम में दाखिल हुआ। वो घुटनों तक टॉवल लपेटे बाथरूम टब के किनारे पर बैठी नाखून चबा रही थी। अब्रिश, जरान के पुकारने पर वह हड़बड़ाती हुई उठी थी। जरान को देखते गुलाबी होते नजरें झुकाई। जरान मुस्कुराते हुए इसके करीब गया और इसे अपनी बाहों में समाया था। जरान, अब्रिश ने इसके सीने के साथ लगे इसे पुकारा। वो टॉवल लपेटे इसके हिसार में खड़ी अब कांप रही थी। वो बहुत शिद्दत से इसे खुद में लपेटे हुए था। अब्रिश ने
اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی مگر زاران اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ تم نے مجھے خود ہی سونپا تھا۔ زاران نے اس کے لبوں پر نرمی سے لب رکھتے اس کے لبوں کا مسئلہ۔ میں بھوک لگی ہے، آبش کی نظریں چکائے کہا۔ اس ستمگر کی پناہوں اور شدتوں سے جان چھڑوانے کا یہی ایک طریقہ تھا، اور اسے اب بھوک بھی لگ رہی تھی۔ کل دوپہر کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب اس کی شدتیں سہتے سہتے وہ مرنے والی ہو رہی تھی، مگر مقابل کو پرواہ نہیں تھی۔ زاران نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں نئی سرخی کے ساتھ زردیاں بھی گھلی تھی۔ کل رات سے وہ اس پر شدتیں تو نچھاور کر رہا تھا۔ چلو زاران نے الماری سے خشک ٹاول نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ابش نے اس کے ہاتھ سے ٹاول لیتے اپنی نظریں چکائی تھی۔ وہ اس کے سامنے یہ ٹاول نہیں لپیٹنا چاہتی تھی۔ بیوی، مجھے تمہارا شرمانا نہیں پسند۔ وہی روح پسند ہے جب تم بہکتے ہوئے میری شدتوں میں میرا ساتھ دیتی ہو۔ زاران نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے ابھی کچھ دیر والے جذباتی سین یاد دلایا تھا جب وہ اس کی باہوں میں بہک گئی تھی۔ ابش اس کی بات کا مطلب سمجھتے شرماتے ہوئے اس کی باہوں میں سما گئے۔ زاران نے مسکراتے ہوئے اس کے نرم بالوں پر اپنے لب رکھے۔ جان، میں تمہارے ساتھ یہاں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر ہمیں ابھی ہر حال میں نکلنا ہوگا۔ زاران نے اسے سینے میں بھیجتے کہا، کیوں؟ ابش نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی زاران کے ساتھ یہاں رکنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ اکیلے میں یہاں وقت بتانا چاہتی تھی، ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی تھی، یہاں کے سرسبز پہاڑ اور گرتی برف کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جانے کی بات کیوں کر رہا تھا؟ جان، آج عبیر کی برتھ ڈے ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا اس کی برتھ ڈے والے دن میں اس کے پاس نہ ہوں، اس لیے ہمیں ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مجھے رات سے پہلے عبیر کے پاس پہنچنا ہے۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں کچھ کھانے کا آرڈر کرتا ہوں۔ زاران اس کے گال کو شدت سے چومتا وہاں سے چلا گیا۔ ابش کتنی دیر وہاں پتھرائی نگاہوں سے کھڑی تھی۔ اسے ابھی یاد آیا تھا آج تو انایا کی بھی سالگرہ تھی۔ وہ بھی ہر سال اس کی سالگرہ والے دن اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑی خاموش آنسو بہاتی رہی۔ عبیر کو گود میں اٹھائے وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتے وہ بیڈ کے طرف بڑھا تھا۔ اسے نرمی سے بیڈ کے وسط میں لٹایا۔ اسفند یار خان نے جھک کر عبیر کی طرف دیکھا جو گلابی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسفند یار نے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت نرمی سے عبیر کے جلتے دہکتے سرخ انار آرس پر اپنی انگلیاں نرمی سے ٹریس کی۔ عبیر اس کی انگلیاں جھک کر اٹھ کر بیٹھ گئی، جھٹک کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دوسری سائڈ سے بیڈ سے اتر کر وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ 2 قدم چلنے پر ہی اسے زوردار چکر آیا تھا۔ عابر نے اپنے چکراتے سر کو ایک ہاتھ سے تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیا۔ اسفندر لب بیچے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو چکراتے دیکھ کر وہ ایک ہی جسم میں اس تک پہنچا تھا۔ اسفند نے اس کے لرزتے وجود کو نرمی سے باہوں میں بھرا۔ اس کا بار بار جھٹکنا، اس کمرے سے جانا اسے بہت غصے میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر وہ اپنا غصہ کنٹرول کر گیا تھا۔ عابر اس کے حصار میں بری طرح چھٹپٹائی تھی۔ گرم چادر اب صرف ایک کندھے پر ڈھلک رہی تھی۔ سنہری بالوں کی کچھ الجھی ہوئی لٹیں آرس کو چھو رہی تھی۔ کیچر میں مکیر لمبے سنہری بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ صرف متورم ہیزل آنکھیں، دہتے رخ آرس اور گلابی لرزتے ہونٹ، وہ بخار کی حدت میں مزید خوبصورت لگنے لگی تھی۔ اسفند یار خان کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ اسفند یار خان عابر اس سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے لرزتے لبوں سے بولی، عابر خاموشی سے بیٹھ کر بیٹھو، کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ نیچے جتنا تماشا کرنا تھا تم نے کر لیا۔ اسفند نے اس کے چھٹپٹانے پر ذرا سختی سے کہا، میں نے تماشا کیا کیا ہے اسفند یار خان؟ اس کی نم آنکھوں میں سوال اٹھا۔ اسفند کی خاموش نگاہیں اس کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی۔ وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یا پھر آپ نے میری زندگی کا تماشا بنایا ہوا ہے؟ آپ نے مجھے سزا دینے کے لیے شادی کی تھی۔ ضروری نہیں آپ مجھے ساری عمر اپنے نکاح میں رکھ کر سزا دیتے رہے۔ سزا دینے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، یقین مانیں۔ وہ سزا میرے بھائی کی جان نکال کر رکھ دے گی۔ وہ تڑپ کر رہ جائے گا۔ عابر کی بات پر اسفند کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ وہ اس کی بات کی تہ تک جیسے پہنچ چکا تھا۔ کس سزا کی بات کر رہی ہو تو؟
اسفر نے اس کی ایک بازو پر اپنی انگلیاں سختی سے گاڑتے ہوئے پوچھا، مجھے آزاد کر دیں اسفر، مجھے طلاق دے دیں۔ عابر، وہ اس کی بات سن کر اتنی زوردار دھاڑا تھا، عابر کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ عابر لرزتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں پر رکھ گئی تھی۔ عابر کا بخار، تمازت سے جلتا چہرہ اور لرزتا بدن دیکھ کر اس نے بہت مشکل سے اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ اس کا طلاق مانگنا اسے جلتے انگاروں پر لٹا گیا تھا۔ لک عابر، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج یہ بات برداشت کر لی، مگر آئندہ نہیں کروں گا۔ آئندہ یہ لفظ منہ سے مت نکالنا۔ اسفر نے اس کے ہاتھ کان سے ہٹاتے اپنے لہجے کو حتی المکان نرم بنایا تھا، ورنہ وہ اس کا طلاق کا مطالبہ سن کر اس کا رگوں میں دوڑتا خون ابھی تک بھڑک رہا تھا۔ آپ کو اپنی بہن کی فکر ہے کہ آپ اگر مجھے طلاق دیں گے تو اس کو بھی طلاق ہوگی، مگر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بہارے پر ایک آنچ بھی نہیں آئے گی۔ آپ مجھے بس آزاد کر دیں، مگر میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، عابر، اسفر نے گرجتے ہوئے اس کا نام پکارا تھا۔ اس کی خوفناک گرج پر اس کی زبان تالوں سے چپکی تھی۔ اسفر یار خان کا ہاتھ ہوا میں بلند دیکھ کر عابر پر ہاتھ رکھ کر اپنا منہ پھیر چکی تھی۔ اسفر نے آنکھیں میچتے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوا میں معلق ہوتے ہاتھ کو پہلوں میں گرا دے اپنی مٹھی سختی سے دبوچی۔ عابر گہرے سانس بھرتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اب گلابی بھیگی آنکھوں سے اسفر یار خان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ کیوں نہیں ہاتھ اٹھایا؟ اٹھائیے ہاتھ، دیر ڈالے مجھے۔ اسفر یار خان، صفاق سزا دے مجھے۔ آپ کی انا پر وار کیا ہے میں نے طلاق مانگ کر، جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ عابر دیوار کے ساتھ لگے اسفر یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی لہجے میں بولی۔ بخار اور نکاہت سے پیروں میں جان نہیں تھی، وہ بمشکل ہی کھڑی تھی، مگر جو تکلیف وہ رات بھر سہ چکی تھی اس سے زیادہ کوئی تکلیف تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کا ہوگا اور پھر بھی اس سے بے وفائی کرے گا، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ اس سے اچھا ہے وہ سامنے کھڑے صفاق بے وفا انسان سے دستبردار ہو جائے۔ عابر زخمی نگاہوں سے لرزتے بدن کے ساتھ اسفر یار خان کو دیکھ رہی تھی، جو شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ عابر، اب تم نے مزید بکواس کی، میں قسم کھاتا ہوں میں تمہاری بالکل پرواہ نہیں کروں گا، سچ میں ادھیڑ ڈالوں گا۔ اسفر نے اس کے قریب ہوتا دیوار پر ہاتھ جمائے سرد انداز میں بولا، تو ادھیڑ ڈالے پھر۔ عابر دیوار میں مزید سماتے اپنا منہ پھیر گئی تھی۔ اسفر کی اتنی بھی نزدیکی اب برداشت نہیں تھی۔ اس کا منہ پھیرنا اسفر یار خان سے برداشت نہیں ہوا۔ اسفر اس کا منہ دبوچے سیدھا کرتے اس کے لبوں پر جھکے، اس کی سانسیں قید کر گیا۔ عابر، اس کے لمس پر ساکت ہوئی تھی، آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر علیحدہ ہوئے تھے۔ عابر نے سسکی بھرتے ہوئے اپنے نازک ہاتھوں سے اسفر یار خان کو خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس کی گلائیاں نرمی سے دیوار پر جکڑے اس سے پوری طرح اپنے قابو کر گیا تھا۔ وہ بہت شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ بخار کی شدت سے عابر کی حالت کافی نازک تھی، میں کچھ ہی لمحوں میں اس کی گرفت میں ساکت ہو چکی تھی۔ اسفر نے اس کی کمزور سے مزاحمت دم توڑتی محسوس کرتے اس کی نازک پنکھڑیوں پر اپنی گرفت نرم کرتے انہیں آزادی بخشی۔ عابر کے چہرے کو دیکھا جو اس کی شدت اور جسارت پر مزید سرخ ہو چکا تھا، وہ اس وقت سرخ گلاب محسوس ہو رہی تھی۔ عابر گہرے سانس بھرتے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسفر یار خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ کچھ ہی پلوں میں سرخ ہو چکے تھے، نچلے لب پر اسفر کی شدت کا ہلکا سا کٹ بھی تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسے چھونے کی؟ عابر اسفر یار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سسکتے ہوئے غرائی۔ کسی کو بھی ایسے چھونے کے لیے ہمت کا نہیں، حق اور اختیارات کا ہونا کافی ہوتا ہے، اور تمہیں ایسے چھو کر تم پر باور کروایا کہ میں تم پر اپنا حق رکھتا ہوں۔ وہ اس کے نچلے لب کو اپنی 2 انگلیوں میں دباتے ہوئے اپنا دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو گردن سے نیچے سرسراتے ہوئے لے گیا۔ عابر اس کے جسارت پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اب اگر وہ دوبارہ مجھے دیکھتے اپنا منہ پھیرا بے رخی دکھائی تو اس طرح میں تم میں سماؤں گا کہ تم میرا لمس برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ نکاح کی رات کو میری باہوں میں تم نے تڑپتے سسکتے کتنے آنسو بہائے تھے، یاد ہے نا تمہیں؟ اس دن میری شدتوں میں غصہ تھا، بدلہ تھا، مگر اب میری شدتوں میں جنون بھی شامل ہوگا، یہ تمہاری نازک سی برداشت نہیں
नाजुकी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। असफर ने सर्द अंदाज में इसे बावर करवाते हुए इसके होंठों पर अपनी तपिश सांसें बिखेरी। मेरे पास आने के लिए आपको अपनी कसम तोड़नी पड़ेगी, और मुझे यकीन है असफर यार खान अपनी बात से कभी नहीं मुकरेगा। आबिर ने तंजिया लहजे पर असफर यार खान की आंखों में गुस्से की हिद्दत पड़ी थी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो आबिर, मैंने ये निकाह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं किया था, मगर तुम्हें छोड़ने का भी नहीं किया था। तुम मुझसे कभी रिहाई नहीं पाओगी। बात भूल जाओ तुम सारी उम्र अब मेरे निकाह में रहोगी। तुम मेरी जिंदगी से जाने की बात करती हो। मैं तुम्हें इस कमरे से कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं इस हवेली में रहो या फिर कहीं भी। एक बात याद रखना, इस कमरे से बाहर कदम भी मेरी इजाजत से रखोगी। अगर तुम ये सोचती हो कि दूसरी बीवियों की तरह लड़कर या मुझे धमकियां देकर इसकी इस तरह आंसू बहाकर परेशान करोगी तो गलत सोचती हो। होते होंगे शोहर परेशान जो अपनी बीवियों से बेहद मोहब्बत करते हो, मगर यहाँ ऐसा कुछ मामला नहीं है। आज तो तुम्हें नीचे से आराम से गोद में उठाकर लाया हूँ, कल तुम्हें घसीटता हुआ लाऊंगा। अगर आइंदा इस कमरे से बाहर कहीं और रुकने की बात भी की तो। हसन यार खान इस पर चुपते गुर्राया था। वो इसका कमरे से बाहर कहीं और रुकने वाली बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो इसकी जिंदगी से जाने की बात कर रही थी। इसका तलाक मांगना रूह पर चाबुक चाबुक की तरह लगा था। लेकिन आज इसकी तबीयत खराब न होती, वो बुरी तरह सजा देता। जहां तक बात है तलाक की, तो तुम अच्छी तरह जानती हो हम खान किसी भी सूरत अपनी इज्जत को नहीं छोड़ते। इसलिए आइंदा लफ्ज मुंह से मत निकालना। तलाक तो नहीं मिलेगी, मगर जुबान हलक से खींच लूंगा मैं। असफन धमकी आमेज लहजे में बोलता है से दूर हुआ। इस हवेली में अब तलाकें होती हैं। छोड़ने वाले तो भरे जिरगे में छोड़ देते हैं, और हम लाला अव्वल भाभी को छोड़ सकते हैं, तो फिर मुझे भी तलाक हो सकती है। आबिर की बात पर असलम के दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींची थी। बंद मुठ्ठियों की कड़कड़ाहट तक आबिर के समातों तक बखूबी पहुंची थी। असलम यार खान के चेहरे पर गौसो गौसत देखकर एक पल के लिए बस सहमी थी। दूसरे ही पल वो अपने खौफ पर काबू पा गई। मुकाबले की रात की दी हुई अजियत ही इतनी थी कि वो खुद को अजियत की इंतहा पर महसूस कर रही थी। असलम का खौफ से जर्द पड़ता चेहरा और लरसता बदन देखकर अपने मुंह पर हाथ फेरते अपने गुस्से और इश्तियाल पर काबू पाने लगा। वो बुखार की हिद्दत से जल रही थी। वो मुश्किल ही अपने कदमों के सहारे खड़ी थी। ऐसा लग रहा था वो कुछ ही लम्हों में जमीन बोस हो जाएगी। असलम ये देखता इसके करीब होते इसकी कमर में हाथ डाले अपने करीब किया। मिस्टर असलम यार खान, कुल भाभी को छोड़ने वाला अरहाम खान ज्यादा था, मगर मैं असलम यार खान हूँ। मैं अपनी चीजों पर कभी अपना हक खत्म नहीं करता। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ लेना अपने भाई से। एक वक्त था हम दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे, मगर कभी अपनी चीजें एक दूसरे से शेयर नहीं की। जो चीज मेरी थी वो हमेशा मेरी ही दस्तरस में रहती थी। बेजा चीजों को मैं अपनी दस्तरस में जाने नहीं देता। तो तुम इज्जत हो असलम यार खान की। तुम पर कभी अपना हक अख्तियारात फराहम नहीं करूंगा। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, मगर तुम्हें कभी छू नहीं सकता। अगर कभी ऐसा हुआ तो मेरे मुकाबिल आ खड़ी हुई। कसम खाता हूँ मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, मगर रिहाई नहीं दूंगा। आसमान एक हाथ इसकी नाजुक कमर में डालते दूसरे हाथ से इसके बालों को दबोचे वो इसके चेहरे पर अपनी सांसें बिखेरता तपिश सदा लहजे में बोला, तो फिर गाड़ दो मुझे जिंदा जमीन में। असलम यार खान, मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे जब तक आप चाहें आप अपनी दस्तरस में रखेंगे। मैं जीती जागती इंसान हूँ। आइंदा मुझे कभी भी अपनी इज्जत ना कहिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी इज्जत नफ्स की धज्जियां ऐसे नहीं पखेरता जिसे दिन रात आप मुझे अजियत देते हैं। ना ऐसे कोई नहीं करता। अब ये अब ये नया तरीका निकाला है मुझे अजियत देने का। कतरा कतरा मुझे मारेंगे, मेरे और अपने दरमियान किसी तीसरे को लाकर अजियत देंगे। मुझे और असलम यार खान का गिरबान मुठ्ठियों में दबोचे हसियानी चीखी थी। जिस तरह एक मर्द अपनी औरत पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी तरह औरत भी अपने मर्द को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मेरे सामने आप गैर लड़की से बातें करते, रात की तन्हाई में किसी गैर लड़की से मिलने जाते हैं, मुझे दूसरी शादी की धमकियां देते हैं, और फिर मुझसे तवक्को रखते हैं मैं सांस भी आपकी मर्जी से लूं। हाँ भी इसकी शर्ट मुठ्ठियों में जकड़े रो पड़ी थी। असल में गहरा सांस लेते इसे अपने सीने में भींचा था, और गहरे सांस भरते कांप रही थी। वो निढाल सी होती इसके सीने में समा चुकी थी।
असफन इसे बेरमी से अपनी बाहों में भरे इसकी कमर सहलाने लगा। वो अब इसके सीने में मुंह छुपाए सिसक रही थी। असलम की एक रात की बेवफाई का सोचकर ही वो तकलीफ से जैसे मरने वाली हो गई थी। आबिर, बेड पर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। असलम ने इसकी कलाई नरमी से पकड़ी। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, जाइए वहां जहाँ आप रात भर थे। आबिर ने असलम का हाथ बुरी तरह झटकते हुए दूर हुई थी। इससे पहले वो चकरा कर गिरती, असलम यार खान से बाजू में भरे बेड पर लाया और नरमी से लिटा दिया। आबिर गुस्से से दोबारा से बेड से उठी थी। वो इसे बाजुओं में भरते अपने सीने से लिपटा चुका था। इस पर कंबल इस तरह उड़ाया था कि बस के सीने के साथ लगी कंबल में बिल्कुल छुप गई थी। आबिर इसकी बाहों में बुरी तरह से पटाई थी, मगर असलम यार खान की मजबूत बाहों का घेरा वो ना सकी। थोड़ी देर बाद जब थक हार कर इसके सीने में मुंह छुपाए शिद्दत से रो दी, असलम यार खान लब भींचे इसकी सिसकियां सुनता रहा और उसकी बेवफाई को सोचकर ही तड़प रही थी। वो लब भींचे इसका इस तरह रोना बर्दाश्त कर रहा था। वो काफी मजबूत थी। इसकी एक रात की बेवफाई का सोचकर ही वो तड़प कर मरने वाली हो गई थी। मैं उसकी शिद्दत का अंदाजा लगा सकता था और इसे लेकर कितनी हसास है। वो बुखार में भी इस तरह बुरी तरह जल रही थी। इसके बदन की गर्मी अब असलन यार खान को बेचैन करने लगी थी। असलन की उंगलियां अब इसकी कमीज के अंदर से होती इसकी बरहना कमर पर रेंगने लगी। आबिर के बदन की गर्माइश और इसमें इसके जिस्म में गुलाब की खुशबू असलन यार खान के हवासों पर सवार हुई। सोए हुए जज्बात शिद्दत और मद से इसके अंदर सब धनने लगे। आबिर की गुर्बत की तलब इसके अंदर जवां तकाजों को जगा कर परेशान करने लगी थी। वो रो रो कर थक चुकी थी और इसके सीने से लगी हिचकियां भर रही थी। असफर ने इसकी कमर को जकड़े इसके चेहरे पर निगाह डाली। वो आंखें मूंदे हुए थी। असफर को ये जानने में पल नहीं लगा वो सो चुकी है, वरना इसकी बेबाक लम्स पर वो बुरी तरह से पटाती। असफर यार खान की उंगलियां अब इसके कमर के खम पर सरसराती अपनी हदूद तजावीज करने लगी। असफर ने इसकी अंगारा वजूद से नरमी से कंबल अलहदा किया। इसे नरमी से बेड पर लिटाया। वो नींद वलूदगी में चली गई थी। असलम ने इसके साथ अंगारा चेहरे को बगौर देखते इसके सुनहरी बालों में नरमी से उंगलियां चलाई। इसकी नजरें इसके चेहरे और फिर इसका हाथ इसकी गर्दन के नीचे था। इसकी खूबसूरत उंगलियां इसके खूबसूरत उभार को महसूस करने लगी। असलम यार खान की आंखें खुमार आलूद हुई। वह उसकी गर्दन पर झुका था। लब रखने की देर थी कि इसे लगा उसने जलते अंगारों को छू लिया हो। वो परेशान होते इससे दूर हुआ। वो रस्वा नहीं कर रही थी। शदीद बुखार की वजह से वो नींद बेहोश थी। वो अपने जज्बों को सलाता इससे दूर हुआ। इस टाइम इसका होश रुबा सरापा इससे इसके होश उड़ाते इसके दिलो दिमाग को हिला चुके थे। दिलो दिमाग में सिर्फ पास लेटने नाजुक से वजूद की गुर्बत की ख्वाहिश थी। वो इतने ही दिनों की अपनी सारी थकन इस तरह बेचैनी तश्तगी थकावट इस नाजुक वजूद में उंडेलना चाहता था। निकाह की रात का एक एक मंजर इसकी नजरों के सामने आता इसे बेबस करने लगा। वो अपने लब कुछ खिलाता इससे दूर हुआ। वो इस टाइम इसकी शिद्दतें सहने की मजाजाना तक मिजाज न थी। हसन यार खान ने अपनी जैकेट उतार कर बेड की पायदान पर रखी और साइड टेबल ड्रॉर से रुमाल निकालते से जग पर पड़े पानी से भिगोकर आबिर के माथे पर रखा। वो उसके सरहाने के पास बैठकर काफी देर तक इसकी पटिया करता रहा। बुखार की हिद्दत कम हुई तो असफर ने आबिर को नरमी से पुकारा था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखों के पपोते हरकत कर रहे थे। आबिर, असफर ने इसके बाल सहलाते से पुकारा। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। आबिर ने वो आंखें खोलते हुए असफर को एक नजर देखा था। दूसरे ही लम्हे वो आंखें जोर से नीचते रुख पलट गई थी। असफर ने लब खींचकर इसे देखा। आबिर, अब की बार असफर यार खान ने इसे सख्ती से पुकारा। आबिर ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। तुमने खाना खाया था आबिर? असफर यार खान ने इसकी पुश्त को घूरे पूछा। जवाब ना पाकर असफर यार खान ने अपना माथा मसलते हुए इसे कंधे से जकड़े सीधा किया। आबिर, नो मोर नखरे।
मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझी तुम? असफन इस पर झुके बोला। कब खा लिया था खाना? इसने कॉलेज की कैंटीन से मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी बार वो नरूठे अंदाज में कहते हुए रुख मोड़ गई थी। ओके फिर उठो मेडिसिन ले लो बुखार की, ताकि बुखार उतरे तुम्हारा। असफर ने इसे कंधे से पकड़े फिर से सीधा किया। मैं मेडिसिन नहीं लूंगी तो मर नहीं जाऊंगी। सख्त, बहुत सख्त जान हो। पहाड़ों में रहने वाली लड़की हूँ जिसे ये जरा सा बुखार कुछ नहीं कहेगा। आप अपनी गर्लफ्रेंड अलीना की फिक्र करें। इतनी सर्दी में इसकी तबीयत कहीं खराब ना हो गई। आबिर ने असफन यार खान को देखते हुए बेरुखी से कहा। आबिर की बात पर असफन यार खान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। बुखार तो अगर गया उतर गया था मगर वो अभी तक जल रही थी। है ना, फ्रेंड नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, असफन यार खान ने इसकी हेजल ग्रे आंखों में उतरी नमी को बुगाड़ देखते कहा। गर्लफ्रेंड नहीं है मगर बीवी बनाने का इरादा तो है ना। ऐसे तो वो इतनी दूर से आपके पीछे नहीं आ गई। आबिर भीगे लहजे में बोलते ही बेड से उठी। अपने सुनहरे बालों को जूड़े में लपेटते हुए अपनी चादर की तलाश में नजरें दौड़ाई। लेकिन वो यहाँ से जाने पर तो तोल रही थी। बीवी बनाने का भी इरादा नहीं है। बिजनेस के सिलसिले में आई है, बिजनेस पार्टनर है सिर्फ मेरी। असलम यार खान को इसकी हालत पर जैसे रहम आ गया था। इसके लिए वजाहत दे डाली। दूसरी शादी में मूरी की पसंद करूंगा। इसमें ऐना की तरफ से तुम बेफिक्र रहो। हसन के अगले जुमले पर आबिर तलखी से मुस्कुराई थी। वो बिना इसकी तरफ देखे बेड से उतरने लगी। हसन इसे कलाई से पकड़े बेड पर धकेल चुका था। आबिर इसकी कमर से आज तुम बाहर नहीं निकलोगे। मेडिसिन खाओ और आराम करो। हसन ने साइड ड्रॉर से मेडिसिन बॉक्स से टेम्परेचर की दवाइयां बोली। मेडिसिन बॉक्स के से टेम्परेचर की दो गोलियां निकालकर आबिर की तरफ बढ़ाई, जिसे आबिर ने असफन की हथेली से लेते मुंह में रखी थी। असफन ने पानी का गिलास इसे थमाया। आबिर ने खामोशी से पानी का गिलास पकड़े वो दो गोलियां निकली थी। वो मेडिसिन खाकर बेड की दूसरी जानिब खिसकते हुए उतरने लगी तो असफन ने इसे कलाई से खींचते अपने सीने में भेज चुका था। असफन छोड़े मुझे, मुझे नीचे जाना है। आबिर इसके हिसाब में मचलते हुए बोली। नीचे क्या करने जाना है? दो कदम तुम चला नहीं जा रहा। असफर ने इसे सीने में भींचकर इसे ऊपर कंबल दिया। नीचे लाउंज में मेरे बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपना आज का दिन इन लोगों के साथ गुजारना चाहती हूँ। आबिर ने असफर की नीली आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। आज का दिन तुम इसी इंसान के साथ गुजारोगी जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो। और वो कौन है तुम अच्छी तरह जानती। हसन यार खान ने अपने सीने में इस तरह भींचते हुए खुद के करीब किया। आबिर का रंग इस बेबाकी की जिसारत पर सुर्ख पड़ा था। वह एक हाथ इसकी कमर पर लिपटाए हुए था। दूसरे हाथ से वो बेबाक जसारतें कर रहा था। आबिर शर्म को करो हया इसके सीने में मुंह छुपा गई। वो इससे दूर नहीं हो सकती थी। वो जरा सी मजामत करती या असलम यार खान की बेबाक जसारतें बढ़ने लगती। इसकी जसारतें सीने में भींचना आबिर के रुखसार दहका चुका था। वो गहरे सांस भरते बेबसी से असलम यार खान को देख रही थी। इसका हिसार इसकी मजबूत कमर पर मजबूत होता जा रहा था। मैं आज का दिन इस इंसान के साथ कभी नहीं गुजारना चाहती हूँ जो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो। इसलिए छोड़े मुझे। मैं आपसे नफरत मुझे आपसे नफरत है। मोहब्बत कभी नहीं हो सकती। मुझे ऐसे मत छुए। मुझे एक रात की ही दुल्हन रहने दे। मैं नहीं चाहती आप अपनी बात से पीछे हटें। ये कान को जिद नहीं देता वो अपनी बात के खिलाफ चल। हसन यार खान की आंखों में खुमारी देखकर आबिर ने अपनी कमर पर ला लिपटा इसका हाथ हटाने की कोशिश की। वो इसे मजीद सीने में भीग चुका था। आबिर की हिंद आंखों में शबनम बढ़ते इख्तियार कर गई थी। वो बेबसी से देख रही थी। तुम्हारे करीब ना आने का फैसला मेरा है।
اور آج بھی اس بات پر قائم ہوں میرا اس طرح چھونا تمہیں باور کروا رہا ہوگا کہ تمہارے جسم تمہاری سانس ہر وقت ہر سانس کا مالک کون ہے؟ آئندہ یقیناً طلاق کا لفظ تمہاری زبان پر نہیں آئے گا۔ اسلم کچھ پل اسے گہری نگاہوں میں دیکھتے رہا، پھر اسے اپنے سینے میں مزید کھینچے آنکھیں موند کیا۔ اسلم یار خان کی بند آنکھوں کو دیکھتے عابر کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر انمول ہوئے تھے۔ وہ اس کے سینے سے رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ عابر کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اسفن کی شرٹ کو بھگونے لگی۔ اسے محسوس کرتے اسفن کی گرفت عابر پر مزید مضبوط ہوئی تھی۔ ابرش زران کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، چادر سے اچھی طرح خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زران خان زادہ نے اس کا نقاب اتار دیا۔ راستہ لمبا تھا، وہ کمفرٹیبل نہیں تھی، مگر آج اس کے کہے بغیر اس نے ہی چادر سے اچھی طرح اپنا چہرہ ڈھانپا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے سر سے سرکتی چادر کو بار بار اپنے سر پر جما رہی تھی۔ اسے عادت نہیں تھی اس طرح پردہ کرنے کی۔ اسے دوپٹہ مشکل سنبھالا تھا۔ حویلی کی پہلی مرتبہ وہ باہر آئی تھی۔ اتنی بڑی چادر بھی اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں لی۔ زران ہوٹل کے پاس ہی کسی مال سے اس کے لیے چادر اور گرم جرسی اور شوز خرید کر لایا تھا۔ زران نے گہری نظر ابرش پر ڈالی جو ونڈو اسکرین پر نظریں جمی تھی۔ رنگت میں گلابیاں سی گھلی تھی، لبوں پر مہم سے مسکراہٹ، شرمیلی مسکان بھی۔ زران کی نظریں خود پر مسلسل محسوس کرتے ابرش مزید سرخ پڑی تھی۔ وہ اب اپنی نظریں ونڈ اسکرین پر مرکوز نہ رکھ سکی تھی۔ نظریں چکاتے وہ رخ موڑی تھی۔ زران خان زادہ کا کہکہ بلند ہوا تھا، مائی بیوٹیفل وائف، مجھے تم شرماتے ہوئے پسند نہیں ہو۔ تمہارا وہی روپ پسند ہے جو تم نے رات اور تھوڑی دیر پہلے واش روم میں دکھایا تھا۔ زران نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی طرف کھینچا۔ ابرش اس کی بات پر مزید سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ جو جذبات میں کر چکی تھی اب اسے شرم کے ساتھ خفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اوپر سے زران کا ہر تھوڑی دیر بعد اسے بہت گہرائی سے اس کے جذباتی مظاہرے یاد کروانا اسے نظریں نہیں اٹھانے دے رہا تھا۔ زران سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہ دروازے کی طرف کھسکی۔ زران اس کے چہرے پر نظر ڈالتے مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آپ یہی عزت مان محبت اپنے گھر والوں کے سامنے بھی دے دیا کریں زران۔ تھوڑی دیر بعد ابرش کی آواز گاڑی میں گونجی تھی، میں تمہیں کب مان عزت محبت نہیں دی ابرش؟ اپنے گھر والوں کے سامنے سب پر ہمیشہ تمہارا مقام واضح کیا، تمہیں کبھی کسی کے سامنے کچھ نہیں کہا۔ جرگے میں جو کچھ ہوا میں ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ میں تم پر ہاتھ اٹھا بیٹھتا، مگر آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تم پر جتنا بھی غصہ ہو اپنے کمرے میں بیٹھ پر تم اتار دو، وہاں آج کے بعد تم سے رعایت نہیں برتی جائے گی۔ زران کی سنجیدگی میں کہی ہوئی بات کا مطلب سمجھتے وہ مزید سرخ پڑی تھی۔ زران، لیکن آپ کی مورے کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ پلوشا کی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ابرش نے لب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ پلوشا اس کے دماغ سے نکل نہیں رہی تھی۔ امریکہ میں اس کی ہوئی ریسرچ کے مطابق خان فیملیز میں 2-4 شادیاں کرنا عام بات تھی۔ دادی کے علاوہ حویلی کے مردانے میں دوسری شادی نہیں کی تھی۔ زران کو شیئر کرنے کا سوچ سے ہی وہ اذیت محسوس کرنے لگی تھی۔ پلوشا کا حویلی ہونا اس کے خدشات کو ہوا دیتا رہتا۔ زران اور اس کا تعلق کبھی اتنا مضبوط نہیں رہا۔ وہ زران پر یقین کرتی، وہ بستر پر سے شدید محبت کرتا تھا، یہ دل سے ثابت ہو چکا تھا۔ وہ اسے لے کر کافی جذباتی اور شدت پسند تھا، مگر ابھی بھی وہ انسیکیور سا فیل کرتی رہتی۔ اس نے زران کو ہوٹل میں کہا بھی پلوشا کو حویلی جانے کا کہے۔ قربت کے پر لمحات وہ اس کی بات مان گیا تھا، مگر بعد میں وہ اسے اسی بات سے جھڑک گیا تھا۔ اسی لیے وہ اس سے پھر سے یہ سوال کر بیٹھی، ابرش، مورے ہم سب کو لے کر بہت حساس ہے، انہیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان کے نزدیک بہو جیسی مرضی ہو، مگر بیوی اچھی ہونی چاہیے۔
جب مجھے وہ بےسکون دیکھتی ہیں، وہ پلوشا سے میری دوسری شادی کرنے پر سوچنے کے لیے مجبور ہوئی، لیکن اب وہ میرے چہرے پر سکون دیکھیں گی تو پلوشا سے میری شادی کا خیال نکال دیں گی۔ زاران نے ابرش کا ہاتھ نرمی سے تھامے سہلایا۔ رات کے بعد تم مجھے کافی سکون پہنچا چکی ہو۔ میرا چمکتا چہرہ مورے کو پل میں سب سمجھا دے گا۔ وہ یقیناً اب میری دوسری شادی کی نہیں، اپنے پوتے پوتی کی دنیا میں آنے کی خواہش کریں گی۔ زاران نے مسکراتے ہوئے ابرش کے ہاتھ کی پشت کو چوما تھا۔ لیکن زاران، میں اتنی جلدی بچہ نہیں چاہتی۔ ابرش زاران کی بات سنتے ہی گھبرائے گی۔ اس نے چٹپٹاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ اس کے چہرے پر یکدم ہوائیاں اڑی تھی۔ کیوں؟ زاران نے ماتھے پر بل ڈالے ابرش کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ اس کا سب چہرہ اسے غصے میں مبتلا کر گیا تھا۔ مما، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں بچہ کیسے سنبھالوں گی؟ زاران، مما میں بچہ نہیں چاہتی۔ پلیز مجھ پر ابھی یہ ڈرامہ نہ، ذمہ داری نہ ڈالیں۔ ابرش زاران کی سخت نظروں سے خائف ہوتے بول، جب بچہ آئے گا تو سنبھال بھی لوگی۔ مورے کی جب شادی ہوئی تھی تب 18 سال کی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے بھی تو سنبھالا تھا سب کچھ۔ نہ صرف ہمیں، انعام فرشتے بھی چھوٹے تھے جب تائی جان کا انتقال ہوا۔ اسے الہام لالا سب کو دیکھا۔ تم 21 سال کی ہو، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو، یہ سب سنبھال نہ سکو۔ زاران کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ اپنے اور ابرش کے رشتے کو لے کر بہت زیادہ سیریس تھا۔ ابرش سے شدید محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ابرش کا دماغ کب کیا کر جائے، وہ ابھی تک اسے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ اپنے دل کی بات شیئر نہیں کرتی تھی۔ یقیناً بچے کو لے کر بھی اس سے کچھ تحفظات تھے، مگر جو بھی تھے، ابرش کا دماغ اسے شروع سے ہی درست کر رکھنا تھا۔ وہ بہت زیادہ اسے ڈھیل بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ مجبور ہوتا تھا اس پر سختی کرنے کو۔ جہاں پیار سے کام چلانا ہوتا تھا وہاں پیار سے، جہاں سختی کرنی ہوتی وہ سختی سے کرتا۔ اپنی بیوی کو وہ اس کے نیچر کے مطابق ڈیل کرتا تھا۔ زاران کے لہجے کی سختی محسوس کر کے ابرش کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس نے صرف گھبراہٹ میں بچے والی بات کہی تھی، مگر زاران کا سخت لہجہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، بلکہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہوٹل میں اس نے کھانا تک اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، یہاں تک کہ اس کے کپڑے تک اس نے خود چینج کیے تھے۔ وہ دیوانیوں والی حرکتیں کر رہا تھا۔ اب اچانک اسے اتنا سخت رویہ، ابرش نے نم آنکھوں سے زاران کے تنے چہرے کو دیکھا۔ زاران جب حویلی پہنچا تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حویلی پہنچتے ہی ابرش کی طرف دیکھے بنا گاڑی سے اترتے اندر چلی گئی۔ زاران نے ابرش کے پشت کو گھور کر دیکھا تو وہ تیزی سے اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ ابرش کا مزاج اچھی طرح جانتا تھا، وہ غصے میں امینہ خانم کو سلام تک نہیں کرے گی، نہ ہی عابر کی سالگرہ میں شریک ہوگی۔ وہ نہیں چاہتا تھا جب ان میں سب ٹھیک ہو گیا تو وہ کسی کو بھی بات نہ کرنے کا موقع ملے۔ زاران نے اس کی طرف قدم بڑھاتے اسے بازو سے چپٹتے اپنے مقابل کیا۔ وہ لوگ زنان خانے میں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ اس ٹائم زنان خانے میں کوئی نہیں تھا۔ ابھی اوپر نہیں جاؤ گی؟ ہم پہلے مورے کو سلام کریں گے، پھر عابر کی سالگرہ سیلیبریٹ کریں گے، پھر اکٹھے روم میں جائیں گے۔ زاران نے سختی سے کہا، مجھے چینج کرنا، پھر آتی ہوں۔ ابرش نے اس کے سخت تاثرات دیکھتے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ مورے سے مل لو، پھر چینج کر لینا۔ زاران اب کی بار نرمی سے بول۔ ابرش اس بات میں سر ہلاتے زاران کے ہم قدم ہوتی امینہ خانم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ زاران نے درخشا کو عابر کے کمرے سے بلانے کو کہا۔ وہ لوگ اس ٹائم زنان خانے کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زاران نے کیمل کلر کی شلوار قمیض ملبوس وائٹ مردانہ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ اس وقت زنانے میں امینہ خانم، پلوشا اور روبینہ خانم موجود تھی۔ ابرش نیوی بلو کلر کی فراک میں ملبوس بڑی سی شال سر پر اور جو اپنے وجود پر اچھی طرح اوڑھے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے زاران کی طرف بڑھ گئی تھی۔ امینہ خانم سے وہ پہلے ہی مل چکی تھی، مگر روزینہ خانم سے سلام کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ابرش پلوشا کو دیکھتے زاران کے بے حد قریب ہوئے تھے۔ زاران کی لیب پر ہاتھ رکھتے وہ زاران کی طرف دیکھ کر دلکشی سے مسکرائی تھی۔ زاران نامحسوس انداز ابرش کے سے تھوڑا دور ہو کر اس کا ہاتھ اپنی لیب سے اٹھایا تھا۔ سامنے امینہ خانم بیٹھی تھی،
एहतराम लाजिम था। अब्रिश ने जिस तरीके से उसकी लैब पर हाथ रखा था वो नामुनासिब था। फैमिली में ये सब जेब भी नहीं देता था। मगर वो जानता था अब्रिश ने यह हरकत पलवशा को दिखाने के लिए की थी। जरान ने हाथ हटाने पर अब्रिश ने खफकी भरी नजर जरान पर डाली थी और यह आते साथ ही बदल गया था। जरान इसकी खफकी भरी नजरों की परवाह किए बगैर इसे थोड़ा दूर खिसका। अब्रिश जरान की हरकत पर इसे शक्की नजरों से देखती इसे मजीद दूर हुई थी। जनाब शहराम का पता करो। वो इस्लामाबाद पहुंच गया अभी नहीं। अमीना खानम ने जरान से कहा। मोरे थोड़ी देर तक पता किया था। वो पहुंचने वाला है। वो पहुंचकर आपको कॉल कर देगा। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? जरान ने मोतवाना लहजे में कहा। परेशान कैसे न हो। कल से तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था। जानता है हम कितना परेशान था। आज तुम्हें देखकर सुकून हुआ है। लेकिन आज शहरान चला गया है। हमारा दिल फिर से परेशान हो गया। तुमसे आबिर भी बहुत खफा है। सुबह बहुत रो रहा था। तुमने इसकी सालगिरह पर इसे मुबारकबाद तक नहीं दिया। अमीना खानम की बात पर जरान परेशान हुआ था। वो सोफे से उठते सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। आबिर असद यार खान की बातों में गहरी नींद सो रही थी। हसन के मोबाइल की चिंगाड़ चिंगाड़ती आवाज पर इसकी आंख खुली थी। हसन ने अपनी आंखें खोलकर अपना मोबाइल साइड टेबल से उठाते कान से लगाया। हेलो। हसन ने दूसरी तरफ कहना की आवाज सुनते अपना फोन एक कान से दूसरी तरफ मुंतकिल किया। आबिर की कमर पर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ी थी। क्या हुआ है? खैरियत है सब? हसन ने आबिर को एक नजर देखते कदरे आस्ते की आवाज में कहा। वो नहीं चाहता था इसे पता चले लाइन पर एना है। वो उसकी तबीयत के पेश नजर मोहतात है। असलम की मध्यम आवाज सुनते आबिर इसके सीने से सर उठाए से देखने लगी। आबिर को जागता देखकर असलम नरमी से इसे पीछे करते बेड से उठता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। आबिर इसे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ता देखकर उठकर बैठते क्राउन के साथ टेक लगा गई। फोन पर एना है वह समझ चुकी थी। आंखों से आंसू फिसलते रुखसारों पर बहने लगे जिन्हें वो बेदर्दी से साफ करते बेड से उठते। अपनी चादर अच्छी तरह ओढ़ते वो कमरे से निकलने लगी। हसन यार खान की आवाज पर रुकी थी। हसन के पुकारने पर आबिर ने मुड़कर इसे देखा जो मकसद सा तैयार खुशबुओं में बसा जीन्स पर व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहने हुए था। आबिर इसे देखकर तलखी से मुस्कुराई थी। वो सच में शफाफ था। कहाँ जा रही हो? हसन ने पास आकर इसके माथे को दो उंगलियों से छुआ। उतर चुका है बुखार और अब आपकी ड्यूटी भी खत्म हो चुकी है। आबिर तंजिया मुस्कुराई। कौन सी ड्यूटी? हसन ने तीखे अंदाज में इसे आईब्रो चुकाए देखा। वही जो अभी निभाने का नाटक कर रहे थे। आबिर तंजिया लहजे में बोली। असफन इसे बगौर देखते इसके नजदीक हुआ। आबिर मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं 2 घंटों तक आ जाऊंगा। आज तुम टेरेस पर खड़ी नहीं रहोगी। अगर तुम गलती से भी टेरेस पर गई तो वादा करता हूँ मैं खुद सारी रात टेरेस पर खड़ा करूंगा जब तक तुम सर्दी से जमकर मुजस्मा ना बन जाओ। मैं कमरे का दरवाजा नहीं खोलूंगा। इसलिए खबरदार खुद को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाए। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का अख्तियार भी सिर्फ मेरे पास है। इसलिए आइंदा तुम मेरी इजाजत के बगैर टेरेस पर कदम नहीं रखोगी। हसन ने इसके गाल को नरमी से 2 उंगलियों से छूता कमरे से निकल गया था। आबिर इसकी बात पर शशदर हुई थी। इसे कैसे पता चला वो कल सारी रात टेरेस पर खड़ी रही। सीढ़ियां उतरते असफन और जरान का आमना सामना हुआ था। असफन जरान को इग्नोर किए सीढ़ियां उतर गया। जरान ने असफन की पुश्त को सड़ निगाहों से देखा था। कलाई पर पहनी घड़ी पर नजरें दौड़ाई जहां शाम के 6 बज रहे थे। वो इस टाइम कहाँ गया है? जरान ने अपनी परेशानी अपनी घनी बेड़ से हिलाई थी। वो लब भेजते आबिर के कमरे की तरफ बढ़ा। आबिर कमरे से बाहर निकल रही थी। जरान को देखते हुए वो ठहरी थी। अस्सलाम वालेकुम लाला। आबिर ने जरान को देखते सलाम किया। वो जरान के गले नहीं लगी थी। यानी पूरी पूरी नाराजगी का इजहार किया जा रहा था। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। जरान ने आगे बढ़ते इसके सर पर हाथ रखते इसे अपने सीने से लगाया। ठीक हूँ लाला। आबिर जरान के हिसार से निकलती संजीदगी से बोली और सीढ़ियां उतरते लॉन्ज की तरफ बढ़ गई थी। जरान गहरा सांस भरते सीढ़ियां उतरते इसके पीछे गया था। वो समझ चुका था आबिर इसे नाराज है। आबिर सबको सलाम करती सोफे पर जा बैठी।
زران مسکراتے ہوئے عابر کی طرف بڑھا جو بچوں کی طرح منہ پھیلائے صوفے پر پاؤں اوپر کر کیے بیٹھی تھی۔ زران نے اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے بازوؤں سے کھینچकर اپنے سینے سے لگایا۔ آئی ایم سوری عابر، میری جان میں تمہیں وش نہیں کر سکا، زاران نے عابر کو سینے سے لگائے کہا۔ وہ زاران کے سینے کے ساتھ لگی بے آواز آنسو بہانے لگی۔ عابر، حسن نے اس کے آنسو محسوس کرتے اسے اپنے سینے سے علیحدہ کیا۔ کیا ہوا ہے عابر؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ زاران پریشان ہوا تھا۔ وہ صبح سے ہی رو رہی ہے۔ یہ بات اسے امینہ خانم سے پتہ چلی تھی۔ عابر چھوٹی چھوٹی بات پر رونے والی لڑکی نہیں تھی، مگر اب بات بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ سمیار خان سے شدید محبت کرتی ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا عابر کے آنسوؤں کی وجہ سمیار خان ہی ہے۔ لالا، آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ آپ نے پہلی مرتبہ مجھے وش کرنے میں دیر کی ہے۔ آپ کی محبت کم ہو گئی ہے میرے لیے، عابر نے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا۔ عابر میری جان، میرا موبائل گم ہو گیا تھا، اسی لیے رابطہ نہیں کر سکا، لیکن دیکھو میں آ تو گیا ہوں۔ زاران نے نرمی سے وضاحت دی، شہرام لالا بھی مجھے وش نہیں کیا، وہ تو یہی تھے مگر وہ بھی نہیں آئے۔ عابر نے ایک اور شکوہ کیا۔ عابر، شہرام آیا تھا، کتنا دیر یہاں بیٹھا تمہارا انتظار کرتا رہا، تمہارا موبائل پر فون بھی کیا تھا اس نے، مگر تمہارا نمبر بند تھا۔ امینہ خانم کی بات پر عابر کے آنسو رکے تھے۔ چلو اٹھو، میں تمہیں باہر لے کر چلتا ہوں، میں نے تمہارے لیے ہوٹل میں ریزرویشن کروایا ہے، چلو ہم باہر چلتے ہیں، وہیں پر تمہارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ زران نے عابر کا ہاتھ تھامتے اسے نرمی سے پکڑے صوفے سے اٹھایا تھا۔ خلاف توقع وہ اٹھ گئی۔ شاید اسم کی بیوی کا غم غلط کرنا چاہتی تھی۔ زران نے ایک قریبی ہوٹل میں عابر کے لیے ہوٹل کا ایک مخصوص ہال بک کروایا تھا، جہاں پر پردے کا پورا انتظام وہ اسے ایک دو بار اسلام آباد لے کر گیا تھا جب وہ میٹرک میں تھی۔ پھر وہ امریکہ چلا گیا، اتنا عرصہ ہو گیا تھا عابر کہیں باہر نہیں گئی تھی۔ اسم ابھی اسے کہیں باہر نہیں لے کر گیا تھا۔ یہ سوچ کر زاران نے یہ پروگرام بنایا تھا۔ باہر گارڈز کی گاڑیاں بھی اس نے ارینج کر لی تھی۔ وہ مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ابش، چلو تم بھی تیار ہو جاؤ، زاران نے ابش کو دیکھتے کہا۔ وہ سب سے لا تعلق بیٹھی تھی۔ زران کے کہنے پر ابرش استباعت میں سر ہلائے اٹھی تھی۔ زران، تم بلبشا کو بھی ساتھ لے چلو، وہ کیا کرے گا ادھر اکیلا؟ امینہ خانم کی بات پر ابرش کے قدم رکے تھے۔ جی مورے، بلبشا تم بھی تیار ہو جاؤ، زران نے موتبانہ انداز میں کہا۔ ابرش کی شکی نظریں وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ امینہ خانم کی بات کسی صورت نہیں ٹال سکتا تھا۔ بلبشا کی زندگی میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، یہ بات ابرش کو سمجھنی تھی۔ زران، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیں، ویسے بھی اگلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے بلبشا ہے آپ کے ساتھ، راستہ حسین کٹے گا آپ کا، حسین کٹے گا آپ کا، ابرش کہتے رکی نہیں تھی، تیز تیز سیڑھیاں چل کے اوپر چلی گئی تھی۔ یہ لڑکی تو گل سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ جس طرح ارحام نے گل کو سر پر چڑھا رکھا تھا، اس طرح ابرش بھی سر چڑھ گیا ہے۔ اس کو سر سے جتنا جلدی اتار لو تو اچھا ہے، ورنہ ارحام کی طرح سر پکڑ کے رو گے۔ اور عابر، تم بھی سوچ سمجھ کر حویلی سے باہر نکلنا، تم اچھی طرح جانتا ہے اسلم کو اسے تمہارا باہر جانا پسند نہیں ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر جانا۔ روزینہ خانم جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھی تھے، تلخی سے بول فردی انداز میں بولتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زران نے بمشکل روزینہ خانم کا طنز برداشت کیا تھا۔ امینہ خانم کی بات پر امینہ خانم کے چہرے پر بھی ناگواری کی لہر دوڑی تھی۔ ابرش کا انداز کافی جارحانہ تھا، جو لاؤنج میں موجود تقریباً سب نے ہی محسوس کیا تھا۔ زران کا سب چہرہ بھی بتا رہا تھا اسے ابرش کا یوں سب کے سامنے اس طرح بات کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ لالا، میں چلوں گی آپ کے ساتھ، عابر اپنا فیصلہ سناتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابرش 2 منٹ میں تیار ہو کر نیچے پہنچو، 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ، نو مور ایکسکیوز۔ زران کی سرد آواز پر آخری سیڑھی پر ٹھہری تھی، پھر جلدی سے وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ زران، تم لوگ چلے جاؤ، بلبشا کو رہنے دو، وہ میرے پاس رک جائے گا، ہم نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ امینہ خانم نے زران کو شرمندگی سے وضاحت دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ابرش اور زران کے بیچ کچھ غلط
गलत इनकी वजह से हो। अमीरा खानम का सर शर्मिंदा चेहरा देखकर जरान का गुस्सा अबिश पर बढ़ा था। मोरे, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। पलवशा साथ जाएगी, जाओ पलवशा, तैयार हो जाओ। जरान ने पलवशा को एक नजर देखते वो खुशी से मुस्कुराते वहां से चली गई। जरान, तुम्हारा बीवी को पलवशा पसंद नहीं है, हम जानता है, मगर वो मजबूर है। तुम्हारा मामू इसका जिम्मेदारी ले चुका है। पलवशा ने आबिर का पलवशा ने आबिर के कॉलेज में दाखिला ले लिया है। अब तुम्ही को बताओ हम कैसे पलवशा को इधर से जाने का कहे। तुम्हारा ममानी हर बात पर मुझसे पलवशा और तुम्हारी शादी का बात करता है। वो यही कहता है कि पलवशा के लिए खानदान में कोई रिश्ता नहीं है। हमने शुरू से पलवशा को शादी जरान से सोचा था। हम बहुत शर्मिंदा होता है अपना लाला और भाभी के सामने। अमीना खानम की बात पर वो गहरा सांस भरता है, इनके करीब हुआ। मोरे, पलवशा के लिए मैं बिरादरी में खुद अच्छा सा लड़का तलाश करूंगा। आप फिक्र ना करें। आपको कोई जरूरत नहीं है पलवशा को यहाँ से जाने के लिए बोलने की। अमरीश को मैं संभाल लूंगा। आप फिक्र ना करें। जरा ने मीना खानम को सीने से लगाए तसल्ली दी। और का और कॉफी कप लिए कमरे में दाखिल हुई थी। अरहाम लैपटॉप गोद में रखे अपनी टांगे सामने रखी टेबल पर फैलाए बैठा था। एक हाथ लैपटॉप के बोर्ड पर हरकत कर रहा था, दूसरे हाथ में सिगरेट दबा हुआ था, जिस पर वो हर थोड़ी देर बाद गहरा कश लेता। वह इस वक्त ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक गरम हाई नेक स्वेटर में मलबूस था। घने से बाल माथे पर बिखरे थे। वो हर थोड़ी देर बाद अपने घने बालों को उंगलियों से संवारता। इसका पूरा ध्यान इस टाइम लैपटॉप की स्क्रीन पर था। कल सुल्तान अहमद के साथ एक बिजनेस मीटिंग थी और एक बिजनेस पार्टी भी है, इसे शरीक होना था। कल इसे जल्दी यहाँ से इस्लामाबाद के लिए निकलना था। अरहाम ने सिगरेट का गहरा कश लेते हुए दरवाजे की तरफ निगाह की, जहाँ से वो और कॉफी का कप पकड़े अंदर दाखिल हुई थी। ब्लैक कलर की स्टाइलिश सी शर्ट में ट्राउजर में मलबूस थी। फ्लैपर नुमा ट्राउजर पर शर्ट काफी शॉर्ट थी, जिस पर इसने बड़ी सी खूबसूरत नफीस सी शॉल ओढ़ रखी थी। अरहाम ने गहरी नजर इस पर डाली और कॉफी का कप इसके करीब टेबल पर रखकर मुड़ी ही थी। अरहाम लैपटॉप सोफे पर साइड पर रखे अपने पाँव जमीन पर रखते फोन को कलाई से पकड़कर अपनी गोद में बिठा चुका था। वो बहुत जरूरी काम कर रहा था, मगर भूल की इतनी नजदीकी ने इसकी तमाम तवज्जो काम से हटा दी थी। वैसे भी वो सुबह जा रहा था, तो आज रात का एक एक पल हूर की बाहों में गुजारना चाहता था। अरहाम ने उसकी शॉल उसके वजूद से उतारते बेड पर उछाल दी थी, साथ ही इसका कैचर उतार कर दूर उछाल दिया था। इसके बालों से वो अपनी नरमी अपनी उंगलियों से सुलझाने लगा। चॉकलेटी सिल्की ब्राउन बालों को हूर अरहाम की शर्ट मुठियों में जकड़े नजरें चुका गई। अरहाम की झुकी नजरें देखकर गहरा मुस्कुराया था। तुम अपने बाल सुलझाती क्यों नहीं हो? अरहाम इसके उलझे बालों में अपनी उंगलियां नरमी से फेरते बोला। वो आज 2 मरतबा शावर लिया तो बाल सुलझाने का टाइम नहीं हुआ। वो नजरें झुकाए ही बोली, 2 मरतबा शावर क्यों लिया? अरहाम ने शरारती लहजे पर हूर की शौकी नजरें अरहाम पर डाली। चलो आइंदा से तुम्हारे बाल में सुलझा दूंगा। अरहाम की शक्की नजरों से महफूज होते बोले। इसके सिल्की बालों में नरमी से उंगलियां फेरने लगा। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। इसमें इसे अपने मजीद करीब करते इसके कान के लोम को दांतों में लेते इसके बालों में मुंह छुपाए इसके बालों की महक को अपनी सांसों में उतारा था। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। वो इसकी दोनों आंखों को बारी बारी नरमी से चूम रहा था। तुम्हारे गाल। अब वो इसके आरस पर अपना लब रख रहा था। तुम्हारे संग मरमर सा बदन, तुम्हारा कंदन सरापा, मैं दीवाना हूँ तुम्हारा। अरहाम के हाथ का लम्स अपनी धड़कनों पर महसूस करते वो डरती थी। इसका दिल अरहाम के लम्स से और तेज से धड़कने लगा था। अरहाम, पूर्ण बेबसी से इसे नम आवाज में पुकारा। वो उसकी कुर्बत में इतना मदहोश था कि हूर की आवाज में आंसू की आमेजिश महसूस न कर सका। अरहाम खानजादा के लब इसके आरस से होते इसकी थोड़ी को नरमी से छू रहे थे। अब वो बहुत नरमी से इसकी गर्दन को चूम रहा था और उसकी शेख के चुभन से कसमसाई थी। तुम तलब हो मेरी, नशा हो मेरा, तुम जुनून हो मेरा। वो मदहोशी में बोलता दीवानगी के आलम में इसकी गर्दन पर जा बजा अपनी मोहब्बत की महरें छोड़ रहा था।
अरहाम ने एक हाथ इसकी कमर में हमायल किया हुआ था, दूसरे हाथ से लैपटॉप उठाकर टेबल पर रख दिया। फोन को सोफे पर नरमी से लिटाता वो इस पर झुक गया। जानती हो मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, मगर तुमने मेरी पूरी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। तुम्हारी बेपनाह खूबसूरती मुझे बहका देती है। ये कैसी तलफ है, ये कैसी तिश्तगी है जो मिटती ही नहीं। और हाँ, बहके बहके अंदाज में बोलते इसके चेहरे के एक एक नक्श को दीवानों की तरह छू रहा था। तलब है तो है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, बल्कि जरा जीऊं तुझे आ जा मेरी सांसों में। मरीज़े इश्क में करते रहो, हाथ रख दे तो दिल पे जरा। तुझे मेरे रब ने मिलाया, मैंने तुझे अपना बुलाया, अब ना बिछड़ना खुदाया। वो इसके कान की लो को नरमी से चूमता गुनगुना रहा था, और इसकी गुनगुनाहट पर गुलाबी होते आंखें मीच गई थी। वो उसकी बंद आंखों को चूमता उसकी आलस पर नरमी से उंगलियां फेरते हुए उसके लबों पर झुकते इसके सांसों को इनहेल करने लगा। वो बहुत नरमी से उसके लबों पर अपनी दस्तरस कायम किए उसकी सांसें चुरा रहा था। अरहाम खान ज्यादा की सांसों में सिगरेट की फीकी फैली महक नूर की सांसों में सरायत कर रही थी। वो इसे कंधों से शर्ट से पकड़े इसका लम्स बर्दाश्त कर रही थी। काफी देर सांसों का ये तालमेल जारी रहा, और की बर्दाश्त जब खत्म हो गई तो इसने अपने कांपते हाथों से अरहाम को दूर करने की कोशिश की। अरहाम को हूर का एक्ट सख्त बुरा लगा। वो उसकी कलाइयां सोफे के साथ लगाए और शिद्दत से उसकी सांसें इंहेल करने लगा। अरहाम की बढ़ती शिद्दत और इसकी आंखों की नमी शिद्दत इख्तियार करते आलस पर बहना शुरू हुई। अरहाम के हलक में इसके आंसुओं का नमकीन जायका घुला तो अरहाम इसके लबों का जागी बख्शता से थोड़ा दूर हुआ था। क्या हुआ है? अरहाम ने इसके आंसू अपनी उंगलियों से नरमी से साफ करते दरश्त लहजे में पूछा। कुछ नहीं, हूर ने इसकी शर्ट पर उंगली ट्रूस करते हुए डबडबाए लहजे में कहा। इसकी तरफ देखने से एतराज बढ़ता था। अरहाम थोड़ी देर तक इसकी कांपते लबों को देखता रहा। वो समझ गया था ये आंसू की शिद्दत पर नहीं किसी और वजह से है। अरहाम ने इसकी कमर में हाथ डालते इसे ऊपर उठाते बिठाया था और खुद भी उठकर बैठा। उसका हाथ थामते इसे अपने करीब करके सीने से लगाया। किसी ने कुछ कहा है? क्या हुआ है किचन में? थोड़ी देर पहले तुम बिल्कुल ठीक थी। अरहाम ने इसकी थोड़ी नरमी से छूते इसकी भीगी आंखों में देखते इस्तफार किया। इसके नरम लहजे पर आंखों से बहते आंसू फिर से आरस का हिस्सा बने थे। वो आबिर के आज बर्थडे है। वो अपने जरान लाला के साथ बाहर गई है अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वो अरहान की आंखों में देखते भीगे लहजे में बोली। तो अरहाम ने आईब्रो उछाया था। तो कुछ नहीं। अरहाम के साथ लहजे पर हूर अपने आरस पर अपनी हथेलियों से रगड़ते इसके सीने से अलहदा हुई। तुम्हें भी जाना है बाहर? अरहाम ने इसकी भीगी आंखों को बगौर देखते पूछा। नहीं। हूर ने फिर से आंखें रगड़ते सर नफी में हिलाया। वैसे भी मैं कैसे जा सकती हूँ? हूर ने अरहाम की तरफ देखते मासूमियत से कहा। क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकती? अरहाम की भवें तनी थी। आपने मुझे सजा दी है, मैं इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती, खुले आसमान के नीचे कदम नहीं रख सकती। हूर के लहजे ने फिर से शबनम घुली थी। तुम्हें जाना है बाहर? अरहाम ने सिगरेट जलाकर लबों से लगाया। बस के लफ्ज अब तक उसके दिल से लगाए बैठी थी। ये बात अरहाम के दिल को लगी थी। इसने बेचैनी से सिगरेट का गहरा कश लिया। लेकिन आप तो मुझे पर्दा करवाते हैं, वो मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? इसके बाद तरफ की बार अरहाम के लबों को गहरी मुस्कुराहट ने छुआ था। पर्दा करते भी बाहर जाया जा सकता है। मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ कोई भी ना हो। अरहाम महम सा मुस्कुराते हुए बोला। मुझे बाहर नहीं जाना अरहाम। मुझे आप अपने पाप मुझे आज अपने पापा की बहुत याद आ रही। वो अपने मरते आंसुओं पर काबू पाते हुए फिर एकदम अरहाम के सीने के साथ लगे फुट फुट कर रो दी थी। अरहाम इसके यूं रोने पर लब खींच गया था। इसे नरमी से अपने सीने में भींचे इसकी कमर नरमी से सहलाई। अरहाम के हाथों का नरम लम्स अपनी कमर पर महसूस करते हुए उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोचे इसके सीने में मुंह छुपाए और भी शिद्दत से रोने लगी। अरहाम ने इसकी कमर पर अपनी ड्रेस मजबूत करते इसे नरमी से खुद में खींचा। थोड़ी देर बाद वो अपने आंसू अपनी हथेलियों से साफ करते से अलहदा हुई। पता है अरहाम, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरी बर्थडे
सेलिब्रेशन इतनी धूमधाम से करते थे, आज सोच भी नहीं सकते। जिस दिन मेरी बर्थडे होती थी, वो इस दिन का एक एक पल मेरे साथ गुजारते थे। मेरी 18वीं सालगिरह आने पर उन्होंने मुझसे बहुत वादे किए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे ऐसा गिफ्ट देंगे जो कभी किसी ने किसी को ना दिया। मगर ये मेरी पहली बर्थडे थी, जिस पर मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे, बल्कि कोई भी मेरे साथ नहीं था। ये मेरा पहला बर्थडे था जिसमें किसी ने मुझे विश नहीं किया। इस दिन मैं इस कमरे में अकेली थी। इस दिन मुझे पापा की बहुत याद आई थी। आज आबिर की बर्थडे पर सब इसके लिए प्यार देखकर मुझे अपने पापा याद आ गए। वो रोते हुए बोली, आराम। इसकी बातों को बगौर सुनता सिगरेट के गहरे कश दे रहा था। इसका रोना इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब मैं 18 साल की थी, पापा मुझे बाहर नहीं लेकर जा सके, तो उन्होंने हमारा पूरा घर डिज्नीलैंड बना दिया था। पूरब बहते आंसुओं के साथ मुस्कुरा दी थी। वो छोटा सा घर जो तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुमसे धोखे से हथिया लिया था। अरहाम ने उसकी तरफ बगौर देखते संजीदगी से पूछा। वो अरहाम के सवाल पर गड़बड़ाई। वहाँ, हाँ, वही से आर्टिफिशियल लग रही थी। वही इसे आर्टिफिशियल लुक ही देना था, तो पापा ने इसे छोटे से घर को डिज्नीलैंड की तरह सजाया था। वो कदरे आहिस्तगी से बोली, क्या काम करते थे तुम्हारे पापा? अरहाम को पूरा यकीन था वो अपना झूठ भूल गई होगी। वो ड्राइवर थे। उन्होंने इस बार भी कदरे आहिस्तगी से कहा। अरहाम का चेहरा उसके झूठ पर मजीद संजीदा हुआ था। वो वाकई में भूल चुकी थी कि इसने पिछली बार अपने पापा को एक होटल में शेफ बताया था। नाम क्या था तुम्हारा? तुमने मुझे अपना गाड़ी में। अरहाम ने इसकी झुकी आंखों और सुर्ख चेहरे को देखते संजीदगी से पूछा। इश्क। और के लबों से बरामद हुआ, यानी कि इसने ये बात सच बोली थी। इसका निकनेम शायद इश्क था। अरहाम ने एक बार फिर से सिगरेट से गहरा कश लिया। कौन बुलाता था तुम्हें इश्क? अरहाम ने संजीदगी से पूछा। वो बुलाता था जो मुझे इश्क कहता था। फोन में बोलते बोलते लब दांतों तले दबाया था। कौन बुलाता था? अरहाम की आंखों में एकदम सुर्खी की हिद्दत ने शिद्दत अख्तियार की थी, जिसे देखते हूर का हल खुश हुआ था। वो सहमते हुए अरहाम से थोड़ा दूर खिसकी। अरहाम के लहजे की ठंडक उसे अपनी हड्डियों में सराहत करती महसूस हुई। वो वो हमारे नेबर्स में रहता था। 7 साल का बच्चा था वो। इसने ये नाम किसी फिल्म में सुना था, तो वो मुझे प्यार से इश्क बुलाता था। वो ने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। अरहाम की आंखों की सुर्खी और इसके तने हुए नक्कूश बता रहे थे इसे किसी बच्चे का इश्क कहना भी पसंद नहीं आया था। इश्क आप ही कहता था वो। मोहन ने डरते डरते मजीद वजाहत दी। अरहाम ने इसे बाजू से खींचते अपनी गोद में बिठाया। एक बात याद रखना, तुम हो, सिर्फ मेरी हो। तुम इश्क करने की ही काबिल हो। तुम्हारा नाम इश्क ही होना चाहिए था, मगर मुझे वो नाम भी गवारा नहीं जो किसी ने भी तुम्हें दिया हो। तुम्हें कभी किसी ने नजर भर कर भी देखा हुआ तो मैं पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हारे सारे झूठ कबूल हैं, मगर अगर मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई आया भी हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हारे वजूद पर जिस्म तो मेरी हुकूमत है। मुझे तुम्हारी सोचों और दिल पर, तुम्हारी जुबान पर भी सिर्फ अपना नाम चाहिए। मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन करूँ ना करूँ, मगर इस बात पर मैं यकीन कर बैठा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं आया। अरहाम ने इसके बालों को पकड़ते इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। मैं सच कह रही हूँ। अरहाम, मेरी जिंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हैं। वो नजरें झुकाए और वो मुश्किल बोली थी। अरहाम की खून उतरी आंखों में देख न सकी, जहाँ अजीब सी दीवानगी थी। इसे अपने रगों में दौड़ता खून मुजम्मद होता महसूस हुआ। बोला, तुम सिर्फ मेरी हो। अरहाम ने इसकी धड़कनों पर अपने लब सख्ती से रखे। मैं सिर्फ आपकी हूँ अरहाम, हूर ने कांपते लबों से कहा। तुम सिर्फ मेरी हो, हूर सिर्फ मेरी है। तुम्हारे रोम रोम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी महकती सांसें, तुम्हारा हर धड़कन सिर्फ अरहाम खानजादा की है। वो अब पता नहीं पूछ रहा था या इसे बता रहा था। वो हूर की धड़कनों पर अपने लबों से अपने लम्स की गहरी छाप छोड़ रहा था। कल सुबह मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, इसीलिए आज सारी रात तुम मुझे अपनी बाहों में चाहिए हो। आज रात तुम्हें मैं सोने नहीं दूंगा। अरहाम खुमारी से बोलते अपने लबों की तजावुज बढ़ा रहा था। पूर्ण ने कांपते हाथों से अरहाम के बालों में उंगलियां चलाई।
अरहाम भी थोड़ी देर पहले सिर्फ आंखों और सर्द लहजे से वो डर गई थी, इसलिए इसकी शिद्दतों में इसका साथ देने लगी। और की उंगलियों की नरमाहटें अपने बालों में महसूस करते अरहाम के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। अरहाम ने सीधा होते हूर को खुद से अलहदा किया और सोफे से उठते हुए गोद में उठाते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। हूर ने अपनी आंखें फैलाए तहीर ज़दा होते अरहाम को देखा। आज तुम्हारे लिए नाइटी सिलेक्ट करूंगा। अरहाम ने इसे मजीद ऊपर को उठाते इसके कान में मत्थम से सरगोशी की थी और इसकी शर्ट मुठियों में दबोचे इसके सीने के साथ लिपट पड़ी थी। लगता है नाइटी पहनाने का प्रोसेस भी मुझे ही अंजाम देना पड़ेगा। वो इसका शर्म से पड़ता सुर्ख चेहरा देखते और अपने सीने में बजती इसके दिल की धड़कने महसूस करता एक बार फिर से मध्यम सरगोशी कर गया था और अब की बार इसके सीने में मुंह छुपाते आंखें मीच गई थी। अरहाम गहरा होते ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। बाहर इस्लामाबाद के ग्रैंड होटल में दाखिल हुई थी। वो कुछ देर पहले रहीम के साथ ही पहुंची थी। इसने ब्लैक कलर की खूबसूरत सी फ्रॉक पहन रखी थी जिसके एक बाजू पर खूबसूरत दबके का गोल्डन काम हुआ था और गले पर भी खूबसूरत काम हुआ था। बहारे में बहुत बड़ी चादर इस वक्त खुद को ढांपा हुआ था। होटल में दाखिल होते ही माहम, डॉक्टर अनीजा और डॉक्टर फुरकान होटल लॉबी एरिया में मिल गए। ये क्या बहार है? तुमने खुद को आज भी इस तरह लपेटा हुआ है। आज तो ये चादर दुपट्टा रहने देती। डॉक्टर माहम ने बहारे को इतनी बड़ी चादर में लिपटा देखकर नागवारी से बोली। उनेजा और डॉक्टर माहम आज बहुत स्टाइलिश सूट में मनपूस थे। दुपट्टे कंधों पर एक एक तरफ झूल रहे थे। क्यों, आज क्या खास बात है जो मैं दुपट्टा या चादर रहने देती? बहारे गुल ने माहम के लहजे की नागवारी महसूस करते दरश लहजे में पूछा। मेरा मतलब है ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये इस्लामाबाद है। यहाँ तो दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर माहम ने कहा। दुपट्टे या चादर का ताल्लुक किसी गांव या रस्म रिवाज से नहीं होता। ये तो इसका ताल्लुक इंसान अपनी जात से होता है। क्या वो पहनना रेफर करता है क्या नहीं। मैं चादर और दुपट्टे में कंफर्टेबल महसूस करती हूँ जिस तरह तुम लोग बगैर दुपट्टे के महसूस करती हो। मैंने कभी तुम लोगों के हुलिये पर कोई तबसरा नहीं किया। इस तरह तुम लोगों को भी हक नहीं पहुंचता और मुझ पर कमेंट पास करो। बहारे पर सपाट लहजे में बहते आगे बढ़ गई थी। तौबा, इस बहारे का मिजाज तो आसमान पर रहता है। पता नहीं किस बात का गुरूर है इसे। डॉक्टर वहां दरश्तगी से बोली। इसमें गुरूर कहाँ से आ गया? वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता। इसके ऊपर इसके पर्दे के मुतालिक कुछ कहो। और वो चादर और दुपट्टे में ज्यादा अच्छी लगती है। डॉक्टर फरकान संजीदगी से बोला। आप तो ये कहेंगे डॉक्टर फरकान, आप इन्हें पसंद जो करते हैं, मगर वो आपको मुंह भी नहीं लगाते। डॉक्टर माहम तंजिया बोली। इसीलिए तो पसंद करता हूँ इसे। हो सकता है वो मुझे मुंह लगाती तो मैं इसे पसंद ना करता। डॉक्टर फरकान संजीदगी से कहते हैं अंदर की जानिब बढ़ गया। क्या हो गया है वहां? बहारे हमारी अच्छी दोस्त है, इसकी बातों का क्यों बुरा मनाती हूँ? वो अपनी जातियात जातियात बात पर करना पसंद नहीं करती थी। तुम जानती हो इसको। डॉक्टर अनीजे ने मोहम को रसाने से समझाया। हाँ जानती हूँ। पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया मुझे। डॉक्टर मोहन महन सा मुस्कुराई थी। अच्छा, चलो अंदर चलते हैं। डॉक्टर अनीजा बोलते अंदर हॉल की तरफ बढ़ गई थी। ये होटल एक बहुत खूबसूरत डाइनिंग हॉल था जिसके एक तरफ बुफेट डिनर लगा हुआ था। हॉल के वसत में एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल लगाई हुई थी और थोड़ी दूर भी खूबसूरत गोल टेबल लगाई हुई थी। एक तरफ खूबसूरत डांस फ्लोर भी था। यहाँ से आइजल के कुछ दोस्त और अस्पताल से के डॉक्टर से मधु किए थे। ये पूरा हॉल बुक था। आइजल के फ्रेंड और मेहमानों के अलावा बाहर से कोई भी नहीं था। शहराम ने तमाम गेस्ट के लिए रूम भी बुक करवाए थे ताकि वो लोग वहां पर कंफर्टेबल होकर चेंज वगैरह कर सके। दूर का सफर था, रात का टाइम था। अगर कोई डिनर के बाद रुकना चाहे वो तो होटल के कमरे में स्टे भी कर सकता था। तमाम इंतजाम शहराम ने ही करवाए थे। आइजल जर्मनी से आई थी, इसे कुछ पता नहीं था। इसके बर्थडे के तमाम इंतजाम शहराम ने ही देखे थे। बाहर ने रूम में जाकर चादर उतार कर दुपट्टा सर पर पिन से अच्छी तरह सर पर और कंधों पर फैलाया।
वो इस वक्त सर पर ब्लैक दुपट्टा जिसने इसकी हेयर पिन्स के साथ अच्छी तरह सर पर जमाया हुआ था और एक कंधे पर खूबसूरत से ब्लैक एंड गोल्ड शॉल डाल रखी थी। लाइट पिंक कलर की लगी लिपस्टिक लगाए हुए थी। आंखों में काजल और पलकों पर मस्कारे का कोट किया हुआ था। लाइट से मेकअप में वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। वो अपने कमरे से निकलती ही डॉक्टर अनीजा की हमराही में डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। इस टाइम सभी डॉक्टर बड़ी सी डाइनिंग टेबल के गेट बैठे थे। बाहर ही सबको सलाम करते ही महाम और अनीसा के साथ वाली चेयर पर बैठे। साथ ही डॉक्टर फरकान और डॉक्टर अमाद थे। एक तरफ सीनियर डॉक्टर तबीब बैठे थे और इनकी मिसेस बैठी थी। आइजल की दोस्त एंजेलिना और माइक आइजल के साथ ही बैठे थे और कुछ दोस्त जो यहाँ पाकिस्तान से थे वो दूसरे टेबल के गिर्द बैठे थे। बाहर अनीसा से बातें करने में मसरूफ थे। डाइनिंग हॉल के दरवाजे से शहराम अंदर आता दिखाई दी और जब हॉल में इंटर हुई थी शहराम कहीं नहीं था। इसे डॉक्टर फरकान से पता चला था शहराम आ चुका है। वो अपने रूम में चेंज करने गया था। शहराम ब्लैक एंड व्हाइट डिनर सूट में मलबूस था। बालों में जेल लगाए अपनी वजीब पर्सनैलिटी के साथ काफी पुरकशिश लग रहा था। बाहर इसे एक नजर देखते अपनी निगाहें फेर दी थी। शहनाम ने डाइनिंग टेबल के करीब आकर सबको सलाम करते आइजल के साथ वाली चेयर खिसकाई तो आइजल भी अख्तियारी में चेयर से खड़ी हुई। आप क्यों खड़ी हो गई डॉक्टर आइजल? बैठिए प्लीज। शहनाम ने बैठते हुए आइजल से काफी नरमी से कहा। तुम खड़े थे तो मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर में खड़ी हूँ। आइजल ने सादगी से बोलने पर सबने चेहरों पर मुस्कुराहट दिखी और शहनाम को बहुत रिस्पेक्ट देती थी। ये बात हॉस्पिटल का हर फर्द जानता था। वो अपने इमोशंस सब इसके सामने जाहिर भी कर देती थी। आज तो आइजल की चमकती निगाहें शहराम खानजादा का दीवानावार तवाफ कर रही थी। इससे पहले डॉक्टर फरकान को गले में खराश महसूस होती ही डॉक्टर अमाद ने डॉक्टर फरकान के पाँव पर जोर से पाँव मारा था। डॉक्टर फरकान की दली सी चीख बुलंद हुई तो सबके लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई, सिवाय शहराम के घूरने पर डॉक्टर फरकान ने अपनी टाई ठीक करते हुए महम से स्माइल शहराम को स्माइल पास की। बाहर गुल आइजल के सामने वाली चेयर पर ला ताल्लुक से बैठी थी, लेकिन आइजल अब तो मैं बैठ चुका हूँ, अब आप भी बैठ जाएं प्लीज। आइजल को यूं ही खड़े देखकर शहराम नरमी से बोला, और सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। आइजल शहराम को दीवानावार निगाहों से देखते मासूमियत से कहते चेयर पर बैठी। डॉक्टर आइजल सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे तो पता नहीं था ये इतनी खूबसूरत है। इन पर से तो नजर ही नहीं हट रही। उफ, शहराम सर कितने खुशकिस्मत हैं जो बल खाती सड़कों पर इतने खूबसूरत खातून के साथ एक ही गाड़ी में आए हैं। डॉक्टर फरकान ने सब आह भरते डॉक्टर अमाद की तरफ झुकते मध्यम सरगोशे की थी। बहारे जो अनीसा से बातों में मसरूफ थे डॉक्टर फरकान की बात इसकी समातों में पड़ी। वो डॉक्टर फरकान की मजाक करने की फितरत से बखूबी वाकिफ थी। पता नहीं किस एहसास के तहत इसकी नजरें बेख्तियारी में आइजल की तरफ उठी थी जो रेड कलर की खूबसूरत साड़ी में मलबूस थी। रेड फुल स्लीव साड़ी जिस पर नाजुक सा सिंपल सा पल्लू था। साड़ी का कुछ स्टाइलिश थी मगर आइजल के पूरे बदन को ढांपे हुए थी। अपने सुनहरे बालों को इसने नीचे की लूज कर्ल डाले थे। मेकअप में एक बहुत सिर्फ रेड लिपस्टिक लगा रखी थी। वो बिलाशुबह काफी खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। आइजल के डिनर करते हुए सारी तवज्जो शहराम खानजादा की तरफ थी। वो डिनर कम कर रही थी, शहराम को देखे जा रही थी। आइजल की गहरी निगाहें शहराम पर आज हर कोई महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि डॉक्टर अनीजा और डॉक्टर माहन भी। मातम आवाज में आइजल और शहराम खानजादा पर तबसरा कर रही थी। इनकी जोड़ी को सब चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। शहराम इस वक्त संजीदगी से डिनर कर रहा था। शहराम आइजल की बातों का जवाब मध्यम मुस्कुराते हुए दे रहा था, मगर इस दौरान इसने आइजल की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। सर शहनाम सच में बहुत शरीफ है या फिर बहुत मासूम है जो इतनी इनोसेंस ब्यूटी को नजरअंदाज कर रहे। मैं होता तो डॉक्टर आइजल के कदमों में अपना दिल रख देता। डॉक्टर फरकान की सरगोशी एक बार फिर से बहारे के कानों में पड़ी तो बहारे के डिनर करते हाथ रुके। वो ना चाहते हुए भी शहराम की तरफ देखने पर मजबूर हुई। वो वाकई में आइजल की तरह मतवजा नहीं था। वो कांटे छुरी से स्नैक खाने में मसरूफ था। अलबत्ता डॉक्टर आइजल पूरी तरह शहराम की तरफ मतवजा थे।
اس کی پلیٹ میں پڑا کھانا ویسا کا ویسا ہی تھا۔ وہ شہرام کو دیکھے جا رہی تھی۔ بہار شہرام کو ایک نظر دیتے خاموشی سے ڈنر کرنے لگی۔ ڈنر کے بعد ٹیبل پر ویٹر خوبصورت کیک لا کر رکھا۔ آئزل یکدم اپنی چیئر سے اٹھتی کھڑی ہوئی۔ سب کی نظریں بے اختیار آئزل کی طرف اٹھی تھی۔ شہرام بھی آئزل کو دیکھتا تو آئزل گہرا مسکرائی تھی۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں میرا آج کا برتھ ڈے اب تک کا سب سے خوبصورت برتھ ڈے ہے۔ میرا سوال بہت پسند آیا۔ آپ سب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ معصومیت سے سب کو دیکھتے بول رہی تھی۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ سچ میں بہت صاف دل کی مالک لڑکی تھی۔ شہرام کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے موقع دیا میں یہاں اس کے ہاسپٹل میں کام کر سکوں۔ شہرام بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے اپنی لائف میں شہرام جیسا اچھا پرسن نہیں دیکھا۔ وہ سب کو دیکھتے رک رک کر بول رہی تھی۔ ڈاکٹر آئزل کی تعریف پر شہرام آئزل کو دیکھتے مسکرایا۔ میں شہرام کی بہت بڑی فین ہوں۔ جرمنی میں ایک پارٹی میں ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے ان کا کام بہت پسند آیا۔ شہرام سچ میں بہت ٹیلنٹڈ اور ہارڈ ورکنگ مین ہے۔ آئی تھنک اٹس ٹو مچ۔ ڈاکٹر آئزل شہرام کے مسکراتے ہوئے آئزل کو ٹوکا۔ تعریف قابل تعریف کے قابل نہیں ہے۔ آپ جیسے خاتون بھی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ بیٹھے پلیز۔ شہرام نے نرم لہجے میں آئزل کو بیٹھنے کو کہا۔ چلیں جی، آج آپ کے لیے لانگ ایپیسوڈ ہو گئی ہے، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور میں کوشش کروں گی کہ لانگ ایپیسوڈس دے دیا کروں اور ایک ہی ایپیسوڈس دے دیا کروں، کیونکہ مجھے ایڈٹ کرنے میں سارا دن لگ جاتا ہے، پھر وہ تھوڑی کرنے میں نا بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہی رہے گا کہ ایک ہی ایپیسوڈ کرو، بڑی کرو اور جان چھڑاؤ۔ چلیں جی، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔